Good morning, students. Welcome you all in Brightfield Academy channel again. Today we are going to start exercise 2.3 question number 1. In question number 1 it is given, first question is find 1 upon 4 of A. First we have to find 1 upon 4 of this part. Then in second part we will do 1 upon 4 of 3 upon 5. And in third part we will do 1 upon 2 of 1 upon 4 of 4 upon 3. So let's start this. ए पार्ट, लेट्स कम टू ए पार्ट. ए पार्ट में आपका क्या है 1/4 तो सब जगह आना ही आना है आपका. 1/4 ऑफ ए पार्ट में क्या है आपका 1/4. अब वी ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ ऑफ. द मीनिंग ऑफ ऑफ इज मल्टीप्लाई. दिस इज 1/4 मल्टीप्लाई 1/4. Students, we are trying to reduce it, but we are not getting anything to reduce. So what will be the answer? This is 1 1 ja 1 and this is 4 4 ja 16. This is the answer of A part. Let's come to B part. This is 1/4 of B part. देखिए आप 1/4 of A part तो हमने कर लिया. 1/4 of B. This is 3/5. So we will write 3/5 here. This is 1/4. We already know the meaning of is multiply. This is 3/5. सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या है, हम सोच रहे हैं कि कुछ रिड्यूस हो जाए, कुछ कट जाए, बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टू रिड्यूस. व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ द डिनोमिनेटर. दिस इज 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 20. दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट. लेट्स कम टू सी पार्ट. In C part, again we have to multiply 1/4 to 4/3. स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स बना दिए हैं. दिस इज 1/4 ऑफ 4/3. दिस इज 1/4 मल्टीप्लाई 4/3. स्टूडेंट्स, हम चाह रहे थे हर जगह रिड्यूस करना, बट हमें नहीं मिल रहा था जिससे हम रिड्यूस करें. बट हम यहाँ पे देखिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है आपका, तो वी कैन रिड्यूस इट. सो 1 1 जा 1 and 3 1 जा 3. So students, we have completed this first part. Let's come to second part. Just note it down fast. Let's come to first second part. 1/7 of A 2/9, then 1/7 of 6/5, then 1/7 of 3/10. One by one we will solve it. Let's come to A part. This is 1/7 of 2/9. This is 1/7 of 2/9. This is 1/7 multiply 2/9. Students, we are not getting anything to reduce, so we will multiply this 63. This is the answer of A part. Let's come to B part. This is 1/2 of 6/5. This is 1/7 of 6/5. This is 6 1 ja 6 and 7 5 ja 35. This is answer number B. Let's come to C part. In this 1/7 of 3/10. This is 1/7 of 3/10. This is 1/7 multiply 3/10. Again we are not getting anything to reduce, so we will multiply it and the answer is 3/70. So student, we have completed this first part whole. Let's come to second part. So now students, let's come to second part, multiply and reduce to lowest form. First we have to multiply it, then we have to reduce it. Students, without wasting any time, let's come to first part. This is 2/3 multiply, this is 3 2 ja 6 plus 4 plus 2 is how much? This is 8/3. Yes, जो आपका 3 2 ja 6 है उसमें 2 ऐड किया, आपको अच्छे से आता है मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना. तो इसके बाद हम सोचेंगे इसको रिड्यूस करने की, तो बट हमें कुछ मिल नहीं रहा है कॉमन जो रिड्यूस कर सके हम, तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. 8 2 ja 16 प्लस 3 3 ja 9. क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस फर्स्ट पार्ट.
दिस इज 16/9। एंड स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी, उसमें क्या है आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मीन्स एग्जाम्पल्स आपके 1/3, 2/4, 9/10, ये सब आपके क्या एग्जाम्पल्स है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स है। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक एग्जाम्पल, दिस इज 14/5 and this is 9/2, this is 10/6, you can see these all are the examples of improper fraction. Now we can simply judge whether this is proper or improper. We can see this is 16/9 and numerator is greater, so this is what, this is improper fraction. तो we will just, अब ये जो improper fraction होता है इसको हम mixed fraction में कैसे चेंज करते हैं हमने बहुत बार पढ़ लिया है। once again I'm explaining you this। 9 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। दिस इज 9 1 जा 9, 16 माइनस 9 इज हाउ मच, दिस इज 7। यस, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, मिडिल में। क्लियर हो गया? और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो हमारा डिवीजन होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। You can write this in your rough copy if you want this. So let's come to second part. This is 2/7 multiply 7/9. So अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन है हमको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर रिड्यूस करना है, लोएस्ट फॉर्म में हो रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। दिस इज व्हाट, 2 1 जा 2/9। सो आपका स्टूडेंट्स हमेशा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा, बट ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो दिस विल नॉट चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेकंड पार्ट। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। दिस इज 3/8 multiply 6/4. So students, again we will try to reduce it and we are thinking whether it is reducing or not. This is 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8. Yes, अब इसके बाद हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है ये, तो 3 3 जा 9 and 4 4 जा 16। अब स्टूडेंट्स ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस second, first, second, third part. And after this we will do fourth and after this. Clear? So note it down in your copies. So students, let's come with rest of the question of question number 2. This is question number 4. 9/5 multiply 3/5. So students, हम चाह रहे हैं कि रिड्यूस हो, बट ये रिड्यूस नहीं हो रहा है आपका, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 27 and 5 5 25। नाउ स्टूडेंट्स, वेदर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज improper fraction, so we have to convert it into mixed fraction. So we will divide it and this will come 1/4 2/25. Clear? This is your answer of question number 4. Let's come to question number 5. This is 1/3 multiply 15/8 and this is 3 1 ja 3, 3 5 ja 15. This is 5/8. 5/8 is a proper fraction, so it will remain like this and this is your answer. Clear? Let's come to sixth question. This is 11/2 multiply 3/10. तो ये आपका क्या हो रहा है, इसमें हम देखिए इसमें कुछ रिड्यूस करने को हमें कुछ मिल नहीं रहा है। दिस इज 11 multiply 3 is equals to 33 multiply 10 to जब 20। अब ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डेफिनेटली ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा आपका। सो दिस इज 21 जा 20, 20 minus 33 is equals to 13/20. So this is your sixth part. Let's come to seventh part. This is 4/5 multiply 12/7 and this is 12 4 ja 48 and 5 7 ja 35. Again
we can reduce it, we can change it in mixed fraction because this is improper fraction. This is 25, 35 बन जाए 25 and this is 3 and 1, this is 35, हाँ, this is 1 whole 13 upon 35. This is the answer of 7 parts. So student, we have completed this second question whole. Just note it down in your copies fast. So students, let's enter question number 3. Multiply the following fractions. Let's come to first part. This is 2 upon 5 multiply. Again we have to change it into proper fraction. This is 5 4 जा 20 plus 1, 21 upon 4. Yes. तो ये आपका क्या है इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and this is 21 upon 10. अब ये आपका क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में. दिस इज 2 whole 1 upon 10. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. दिस इज अगेन वी हैव टू चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज 5 6 जा 30 plus 2 is how much? 32. 32 upon 5 multiply 7 upon 9. Again we have to reduce it. बट रिड्यूस तो नहीं हो रहा है आपका. 7 2 जा 14 की 4, 7 3 21 22 अपॉन 5 9 जा 45. क्लियर. अगेन वी कैन डू दिस 14 7. यस. अब क्या हो रहा है, अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे. दिस इज वेरी लॉन्ग, दैट इज व्हाई. सो अवॉइड मिस्टेक वी हैव टू डू दिस. 45 5 जा, this is 4 times 5 4 ja 20 carry 2. This is 180. Clear. This is 4 and this is 4. Yes. तो आपका इसका आंसर है 4 whole 44 upon 45. ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. थर्ड पार्ट में जाइए. दिस इज 3 upon 2 multiply 5 3 15 16 16 upon 2. क्लियर हो गया. अब इसको क्या करना है, आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा 8. तो ये क्या हो गया आपका 12. आंसर हो गया थर्ड पार्ट का. फोर्थ पार्ट में क्या है आपका 5 upon 6 multiply 7 2 जा 14 और 3 17 17 upon 7. क्लियर. तो इसके बाद आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस करने के तो सोच रहे हैं बट रिड्यूस नहीं हो रहा है. 17 5 जा 85 और 7 6 जा 42. तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं. 42 2 जा हो जाएगा आपका 84. यस. तो ये हो गया 2 whole 1 upon 42. So student, we have completed this first, second, third, fourth part of question number 3. Just note it down fast and let's come to next questions. Let's come to the rest of the question of question number 3. This is 5, 6 and 7. Let's come to fifth question. This is 5 multiply 3 plus 2 5 3 है 15 plus 2 17 upon 5 multiply 4 upon 7. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 4 जा 68, 5 7 जा 35. तो आपको पता है 35 2 जा 70 होता है. तो इससे छोटा कर रहा है तो 35 1 जा 35 भी होगा आपका. 68 में से हम 35 माइनस कर देते हैं. ये हो गया आपका 33 upon 35. क्लियर. हमने कुछ नहीं करा, हमने 35 को 68 से डिवाइड किया और ये 1 टाइम बना. तो हमने 68 से 35 माइनस किया. दिस इज 3 and 3. सो स्टूडेंट्स, हमने निकाल लिया इसका आंसर. इसका आंसर है 1 whole 33 upon 35. लेट्स कम टू 6th क्वेश्चन. दिस इज 5 2 जा 10 plus 3 13 upon 5 मल्टीप्लाई. अब ये आपका सिंपल 3 है तो आपको सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन. तो ये आपका हो जाएगा 3 upon 1. सो दिस इज 13 3 जा 39 upon 5. तो आपको 5 से 35 5 8 जा 40, तो इससे बड़ा हो जाता है. तो 5 7 जा 35 7 whole
4/5. So ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का. Let's come to 7th part. This is 7 3 are 21 plus 4 is 25. Upon 7 multiply 3/5. अब ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है आपका. 5 1 5, 5 5 25, 5 3 15 प्लस 5 15 अपॉन 7, तो 7 2 14, 2 whole 1/7. So student, we have completed this third question whole, and I hope you have understood it well. Student, just note it down fast in your copies, and this is all done in this video. And if you like the video, please like this. Please like, share to your friends, and do subscribe my channel. Thank you so much.